Hello, I'm Sonali Pawar. In this lecture, we are going to see the two functions. First one is sprintf and second one is scanf. I have written the syntax of these two functions. You can see the syntax of these both functions are same. Sprintf, उसके बाद str variable means here string type of variable you have to use. उसके बाद next format and after that I will write the parameters, number of parameters I am able to write. Now what is the use of sprintf? Sprintf stores the value of these variables using this format into string variable. So they combines the value of these arguments using this format and store into this string variable, or you can say that it combines the or make a group of these values and store into the single variable. सो आपको कुछ वैल्यूज है वो कंबाइन करना है एंड स्टोर करना है दैट टाइम वी आर गोइंग विद द sprintf फंक्शन. नाउ वी विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ scanf फंक्शन. scanf has a same syntax. Here you have to write down the string variable, उसके बाद format and after that we will write the argument list which is separated by comma. But working of scanf is opposite to sprintf. Scanf is used to separate out the values which are present into this str variable using this format. तो ये क्या करेगा, str variable में जो भी value store है वो separate out करता है. जो यहाँ पे format में हमने जो भी information दी है उसके हिसाब से separate out the values which present into this variable and store that values one by one into these वेरिएबल्स. वो इस वेरिएबल जो भी लिखे हैं हमने उसमें वो स्टोर करता जाता है. So this is the use of sprintf and scanf. Both have a same syntax but they work opposite to each other. Now here you can see that sprintf is used to combine and scanf is used to separate out. तो यहाँ पे ss लिखा है उसके हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं कि scanf is used to separate the values and sprintf is used to combine the values. Now we will see the example of sprintf and scanf. Suppose I just declare one variable char str 100. ऐसा एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है. उसके बाद char first we will see the working of sprintf and afterwards we will see the working of scanf. Suppose I just taken one variable यहाँ पे first name करके एक वेरिएबल लिया which has a size 20. उसके बाद char surname 20. ठीक है, I just taken the two variables and after that what I will do, I will ask the user to enter the first name and last name. So just display the message onto the screen, printf enter f name and s name, is enter the surname and first name. उसके बाद I will scan this value into first name and s name variable. So data type of these variables are strings. So use the %s to scan these values. So %s is a format specifier which is used to read the string. तो उसके बाद आपको ampersand नहीं use करना है because you are working with the string. Just directly use the name of variable, that's the f name, and next one is the s name. So here I just read this value. Now here you can see that I just read that values separately. मैंने क्या किया है, फर्स्ट नेम स्टोर किया एक वेरिएबल में, एस नेम स्टोर किया दूसरे वेरिएबल में. बट सपोज आई वांट टू कंबाइन दीज टू वैल्यूज अंडर द सिंगल नेम str. str एक वेरिएबल लिया, यू कैन गिव एनी नेम. यहाँ पे आपने फुल नेम करके वेरिएबल लिया तो भी चलेगा. तो वो क्या किया मैंने, मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम ये दोनों की वैल्यूज कंबाइन करके str में स्टोर करनी है. तो टू कंबाइन द वैल्यूज आई विल गो विद द फंक्शन sprintf. sprintf का सिंटैक्स क्या है, फर्स्ट नेम ऑफ योर स्ट्रिंग वेरिएबल दैट इज द str. आफ्टर दैट आई विल राइट द फॉर्मेट. तो फॉर्मेट में क्या करना है, मुझे कंबाइन क्या करना है, f नेम. सो दैट इज द f नेम, उसके बाद कॉमा s नेम. ठीक है. Now I want to combine this value and data type of these values are string. So use here format specifier %s. Again
%s। अगर आपने ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे %s लिखा तो क्या करेगा, एफ नेम की जो भी वैल्यू वहाँ यहाँ पे रिप्लेस करेगा, एस नेम की जो भी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे सपोज बीच में स्पेस चाहिए तो राइट डाउन space here, then it will gives the space between f name and s name. Now here the this s printf is used to combine the number of values under the single name, but it will not print that value onto the screen. जैसे हमारा printf जो है, it is used to print the output onto the screen, but s printf is not used to print the output onto the screen. ये screen पे output नहीं display करता, ये क्या करता है, ये जो आउटपुट इसका जो कॉम्बिनेशन आए, जो भी इसका आंसर है, इट इज स्टोर दैट आंसर इनटू द एसटीआर। तो हमारा आंसर रेडी है अभी, वो इट इज स्टोर इनटू द एसटीआर। सो टू सी द आउटपुट जस्ट यूज द प्रिंटफ, और प्रिंटफ में प्रिंट करो एसटीआर। %s is used to print the values and after that write down the str. यहाँ पे मैं /n लिखती हूँ so that it will print that output onto the next line and use the str. Just compile your program, no errors are there, and just execute your program. Now I just said enter the first name. Suppose I enter the Sonali and S name is Power. Now you will get the output Sonali Power because I just printed the str. तो इसने क्या किया, ये दोनों कंबाइन किया है। और यहाँ पे बीच में मैंने बोला दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट में बोला है मैंने एफ नेम, उसके बाद स्पेस दे दो, उसके बाद एस नेम डाल दो। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा के, तो ये क्या करता है, एज इट इज के लेता है। मीन्स इसका मतलब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एफ नेम की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर, उसके बाद स्पेस डाल के लिख, स्पेस डाल के उसके बाद एस नेम। ये सारा पूरा ये स्टोर करता है एसटीआर में। लेट्स चेक। सपोज आई एंटर द सोनाली, उसके बाद ओवर लिखा, नाउ दिस इज द आउटपुट। तो क्या के जो है इट इज टेक एज इट इज। सो यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो एज इट इज लेता है। अगर यहाँ पे परसेंट स्पेसिफायर आए देन इट विल पिकअप्स द particular value of that variable. So this is the use of sprintf. अभी इसके अपोजिट वर्किंग है किसका, scanf का। तो scanf में क्या करूंगी मैं, I will say that enter the full name. Suppose I said that enter full name. तो यहाँ पे यूजर क्या करेगा, पूरा नाम एंटर करेगा। तो पूरा नाम मुझे क्या करना है, रीड करके लेना है। सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे एसटीआर में वो नेम स्टोर कर दिया पूरा, तो एक ही यहाँ पे %s आएगा एंड उसके बाद मैं रीड करूंगी। नेक्स्ट आई विल यूज द एस स्कैनएफ। मैं क्या करूंगी, एस स्कैनएफ जो है वो यूज करूंगी टू सेपरेट आउट। अगर मुझे वो सेपरेट आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, एस स्कैनएफ। एस स्कैनएफ का सिंटैक्स क्या है, एसटीआर कहाँ किस में स्टोर है, नंबर ऑफ वैल्यूज किस में स्टोर है, तो एसटीआर में स्टोर है। मुझे फुल नेम जो है वो स्टोर है एसटीआर में। तो मुझे क्या करना है, यूजिंग दिस फॉर्मेट आई वांट टू सेपरेट आउट दिस थिंग। तो और वो स्टोर कहाँ पे करना है, एफ नेम में स्टोर कर दे और एस नेम में स्टोर कर दे। सो यूज दिस टू वेरिएबल्स टू स्टोर द सेपरेटेड वैल्यू। तो str में क्या है, फुल नेम। सपोज str कंटेन्स द एफ नेम एंड एस नेम, तो यहाँ पे आएगा %s एंड %s मीन्स फुल नेम और जो सरनेम है वो क्या करना है इस फॉर्मेट में, मीन्स एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे एफ नेम में स्टोर करना है, सरनेम स्टोर करना है इसमें। सो इट्स सेक्रेटेड आउट दिस थिंग्स। और उसके बाद अभी ये है इनपुट हमारा, दिस इज द इनपुट ऑफ द scanf एंड दिस इज द आउटपुट, एफ नेम एंड एस नेम इज द आउटपुट ऑफ दिस scanf। तो आउटपुट मेरा अभी किस में है, एफ नेम और एस नेम में। देखो यहाँ पे मैंने फुल नेम यूजर को डालने के लिए बोला, आफ्टर दैट आई रीड दैट फुल नेम इनटू द एसटीआर और यूजिंग दिस scanf आई सेपरेट आउट दैट वैल्यूज एंड पुट इनटू एफ नेम एंड एस नेम। So my output is ready into f name and s name. So print that output. So write down f name and s name. So I will print this value. Now here you are printing the two values. So use the 2%s. यहाँ पे 2% use करो. Now next और एक okay, first I will show you what is the problem when you are using the scanf. So compile your program and execute your program. Suppose user enter the Sonali Power. Okay, so see it will
फेच ओनली सोनाली, इसने क्या किया है, सिर्फ सोनाली रीड किया है, बिकॉज स्कैनएफ जो फंक्शन है ये क्या कर सकता है, एक वर्ड एट अ टाइम रीड कर सकता है, इट इज एबल टू रीड ओनली वन वर्ड एट अ टाइम। लेकिन आप एंटर कर रहे फुल नेम, सो इट विल कंटेन्स द मल्टीपल वर्ड, उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। So scanf is not able to read the multiple words. So for that you have to go with the getS. getS लिखो और वहां पे लिखो str, मीन्स क्या आप पूरी स्ट्रिंग ले रहे और it store that string into the str variable. So compile your program and execute your program. Suppose I enter the full name सोनाली, उसके बाद पोआर, सो इट रीड होल वर्ड एंड उसके बाद उसने प्रिंट किया सोनाली एंड पोआर। आपको और थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ नेम इज इक्वल टू और एस नेम इज इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, प्रॉपरली डिस्प्ले करेगा सपोज सोनाली एंड पोआर। ये तो पूरा नाम मैंने फुल नेम रीड एंटर किया, वो str में स्टोर होगा, तो एफ नेम हो जाएगा सोनाली, एस नेम हो जाएगा पोआर। अगर यूजर ने सपोज पूरा नाम तो मिडल नेम भी डाला, तो यू हैव टू टेक वन वेरिएबल हियर टू स्टोर द मिडल नेम आल्सो। तो मैंने लिखा सपोज कैर एम नेम, ठीक है, उसके बाद साइज दे दो 20 ही देना है, ऐसा कुछ नहीं, इट इज एबल टू स्टोर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स, आप 10 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो उसके बाद सरनेम, यहाँ पे सपोज एम नेम बीच में डाला, तो यहाँ पे यूजर एंटर करेगा फुल नेम, वहां पे करेगा फर्स्ट नेम एम मिडल नेम और सरनेम भी एंटर करेगा। तो वो रीड कर रही हूँ मैं str में, तो str यूज करके वो सेपरेट आउट कर रही हूँ। कितने वेरिएबल्स यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स, इसका मतलब आपको और एक %s यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, so that it will separate out these variables and store into 3 different variables। तो यहाँ पे suppose m name is equal to %s और कॉमा डाल के आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है m name, sorry m name। Now just execute your program, no errors are there, and execute your program, enter full name। सपोज मैंने डाला हीना के पाटिल, सपोज डाला, सो देखो फर्स्ट नेम है हीना, सरनेम है पाटिल आणि एम नेम है के। तो पूरा आपने सपोज कुछ है वर्ड, मिडल नेम जो है वर्ड पूरा डाला तो भी चलेगा, नहीं तो सिर्फ इनिशियल डाला तो भी चलेगा, इट रीड्स दैट वे एंड सेपरेट आउट दिस वैल्यूज इनटू डिफरेंट वेरिएबल। str में फुल नेम होगा, scanf से हम वो सेपरेट आउट करेंगे और डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड जस्ट प्रिंटिंग दैट वेरिएबल। तो ये प्रिंट करने के बाद ही मुझे समझ में आएगा कि str ने वर्क की, सॉरी scanf ये फंक्शन ने वर्क करके ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर किया है या नहीं, I will get to know that. So I just printed that value. So this is the working of sprintf and scanf. Thank you.